There are so many. The road that is going to this temple. त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबक का अर्थ है 3 आँखें और ईश्वर का अर्थ है भगवान, अर्थात भगवान शिव। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्राचीन शिव मंदिर त्र्यंबक शहर में स्थित है। यही कारण है कि इस स्थान को त्र्यंबकेश्वर कहा जाता है, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य में नासिक से 30 किलोमीटर और मुंबई से लगभग 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां से गोदावरी नदी शुरू होती है। तो मेरा यह वीडियो शिव मंदिर और गोदावरी नदी के स्रोत को देखने के लिए ब्रह्मगिरी पहाड़ी की यात्रा पर है। Hi, it's about 9 o'clock in the morning and we had a very good darshan at Trimbakeshwar, and now we are heading towards Brahmagiri. So this is a very nice trek, and as monsoon is going on, it's all green all around, and the road is well paved but still it's slippery, so it's a bit problematic for us, but we are still enjoying the trek. It's very cloudy and rainy and drizzling at times, and it's lovely. Weather is cloudy. हमने जून में ही अपनी यात्रा शुरू की थी और मानसून पहले ही आ चुका था। हर जगह हरियाली थी, हवा की लहरें चल रही थी और मौसम ठंडा था। यहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है। This is the valley. Mountains are covered with clouds and people are sitting here. They are tired of climbing up. Here I'm tired right now. You can see some people on top of the hill. There are so many old people climbing steps, but right now I'm feeling older than them. गोदावरी नदी के स्रोत तक पहुंचने के लिए यह एक बहुत ही दर्शनीय ट्रैकिंग मार्ग है। शिखर पर पहुंचने के लिए लगभग 750 सीढ़ियां हैं। This is a view of Trimbakeshwar from on the way to Brahmagiri, and I'll try to zoom and see if I can see the temple or not. Well, yes, here you can see the pond, and here you can see the temple. This is the Trimbakeshwar temple. This is the whole view, and it's a wonderful place. You can see the wind roaring. It's quite windy and drizzling at times. And here is Chotam. Chotam, please look this side. रास्ते में कुछ छोटे मंदिर और गुफाएं हैं। स्मॉल केव जैसे ब्रह्मा केव। ब्रह्मा केव। आगे है ना, थोड़ा देखो। These 2 girls are local girls. तुम्ही कुठे राहता? रोज येतात का पूजा करायला? दुकान आहे आमचं. हो, कुठलं दुकान? हॉटेल. हॉटेल आहे.
We are on top of this hill and it's very windy. And you can see the clouds passing by. Titanic का पोज एकदम सही आएगा इधर. And there you can see the temple. The road that is going to this temple. Here you can see the temple. Go here. So windy, right? My hands are shivering. हम लगभग मंजिल तक पहुंचने वाले हैं. नमस्कार करा बड़ा गंगा माता की गंगा क्यों क्या गोदावरी नदी 1400 किलोमीटर से अधिक लंबी है, जो पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है. ब्रह्मगिरी का अर्थ है भगवान ब्रह्मा की पहाड़ी, जो लगभग 1800 फीट ऊंची है. कहा जाता है कि संत गौतम और उनकी पत्नी अहिल्या इसी पहाड़ी पर रहते थे. संत गौतम ने इस पहाड़ी पर गंगा को लाने के लिए भगवान शिव की पूजा की थी. You can see some trucks over here. Tourists come in trucks, and that is like a caravan. So you can see they're having their food, and you see some ladies. There you can see that lady combing her hair, and in the other truck you can see how they've kept their belongings just hanging, and you just travel like that. They have made bunks, beds and bunks, and then they stay like this, and they travel from one place to another. They are here almost for 1 month. They have come from Anandi. I think they are going to Pandharpur now. Yeah. And this is Shraddha. हमने शिव मंदिर का भी दर्शन किया, जो ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कलागिरी नाम की 3 पहाड़ियों के बीच स्थित है. यह काले पत्थर से बना है और इस पर सुंदर मूर्तियां तराशी गई है. यह है कुशावर्त कुंड, जो मंदिर परिसर में है. एक बार 24 साल का सूखा पड़ा था, लेकिन संत गौतम अपने आश्रम में चावल बो सकते थे, क्योंकि वरुण वर्षा के देवता उन पर प्रसन्न थे और वह अन्य संतों और इस क्षेत्र के लोगों को भोजन कराते थे. और संतों ने इस आश्रम में शरण ली. एक दिन उसने अपने चावल के खेतों में चरने वाली गाय की ओर तेज घास फेंकी और गाय की मौत हो गई. इस कारण संतों ने संत गौतम से भोजन लेने से मना कर दिया और गौतम ने अन्य संतों से इस पाप से बाहर आने का रास्ता दिखाने को कहा. उन्होंने भगवान शिव से गंगा नदी छोड़ने और उसमें स्नान करने की प्रार्थना करने की सलाह दी. गौतम 1000 वर्ष तक ब्रह्मगिरी शिखर पर गए और तपस्या की. भगवान शिव ने उस पर प्रसन्न होकर उसे गंगा दी, लेकिन गंगा पहाड़ों पर कभी दिखती तो कभी गायब हो जाती और गौतम उसमें स्नान नहीं कर सके. इसलिए उसने नदी को मंत्रमुक्त घास से घेर लिया और उसके लिए व्रत रखा. नदी एक स्थान पर रुक गई, जिसे कुशावर्त कहा जाता है. गौतम ने उसमें स्नान किया और गाय को मारने का उनका पाप धुल गया.
can see Chotonu is sitting here. Chotonu is tired after the trek. Is Chotu? He's tired. That's why. And I had a very good bath. This is the whole temple. हम विभिन्न लोगों से मिलने की मीठी यादों के साथ उनकी संस्कृति और धार्मिक विधि को देखकर वापस लौटे।